ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੇ ਵਾਪਟਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬਰਸਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੋੜੇ ਲੱਗੇ ਦਾ। एक ट्रांसफार्मर ही महफूज नहीं है तो आम शहरी को की क्या कोई गारंटी है? आ गया हूँ सीधा देखा है तो ये सारा देखे सामान जो है बिल्कुल उन्होंने सारा ट्रांसफार्मर भी तारें भी और वो चोरी करके ले गए हैं और ये खाली डब्बा बस छोड़ गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वक्त मैं थाना बसीरपुर की हदूद गांव मड़ाश्री में मौजूद हूँ। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि रात की तारीकी में चोर आते हैं और 5 से 6 ट्रांसफार्मर उतार के गायब हो जाते हैं। रात की तारीकी में इतनी बड़ी वारदात हुई, चोर आए हैं और चोरी करके फरार हो गए हैं। क्या वजह बनी है कि यहाँ पे ज़िम्मेदार जो पहले बिजली के बिल की वजह से परेशान है, हमारे साथ ज़िम्मेदार मौजूद है आज़म साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनको ये कैसे मालूम हुआ कि उनका ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है यहाँ पे आबादी के नज़दीक 5-6 और ट्रांसफार्मर भी उतारे गए हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਵੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵੀ ਰੈਂਟ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੌਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 15-20 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਕਈਆਂ ਚਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ 5-6 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜ਼ੀਮਾ ਕਰ ਜਾਵਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਆ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜੋ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਭਈ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੌਂਕ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਚਾ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਸੀਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 4-5 ਸਾਲ ਮੋਰੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁਰਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋ ਕਰੇ। अच्छा सर, ये थोड़ा कितने लाख का नुकसान हो चुका है? ਇਹ 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ, ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਸਮੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। अच्छा हाजी साहब, ये ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਲੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 5-6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੱਟੂ ਹੋਵੇ, ਮੋਇਨ ਖਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਫਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ MP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ SHO ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 85 ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ AC ਲਾ ਤੇ ਹੀਟਰ ਲਾ ਤੇ ਗਰਮ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੇਂਜਰ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੇ ਵਾਪਟਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬਰਸਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੋੜੇ ਲੱਗੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵੀ ਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂਬਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਗੇ? ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 5-7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜਾ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ, 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਫੁਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ? ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਆਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਰਾਤੀ ਇਹ ਜੇ ਜਾਗਤ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ ਜਿੱਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਅਰਸ਼ਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਫਾਕ ਲੈਂਦੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਪਈ, ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵਫਾਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਲ ਉਹ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਲਾਂਤ ਦੇਵਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣ ਦੇਵਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸਾਡਾ ਵਾਪਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ SHO ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ। ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ,
ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਡੀਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾ ਸੀਦਾ, ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇਵਣ ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਤੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣ ਬਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ नहीं करना चाहिए। बस ये जो आखन वो मनते जाइए। वो मनो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये कैसे वाकया पेश आया है कि आज गांव मड़ा में तकरीबन 5 से 6 ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं और ये एक बड़ी आबादी है, लोगों का आना जाना भी है, ये क्या पस मंज़र है? जी मुनीर भाई, आपने सही बताया कि 4-5 जो ट्रांसफार्मर है वो रात को चोरी हुए हैं। और मुझे तो सुबह पता चला है जब यहाँ पे लेबर आई है मेरी मकई की बिजाई के लिए, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, तो मैं फिर इधर आ गया हूँ सीधा। देखा है तो ये सारा देखे सामान जो है बिल्कुल उन्होंने सारा ट्रांसफार्मर भी तारें भी और वो चोरी करके ले गए हैं और ये खाली डब्बा बस छोड़ गए हैं। तो ये यकीनन पुलिस की नाकामी है। बुलाया है हमने पुलिस को, 15 पे कॉल किया है तो वो तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद आए हैं। अच्छा। यहाँ से 3 किलोमीटर है मेरा ख्याल है, तो 1.5-2 घंटे के बाद आए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये कह के चले गए हैं कि आप आएँ थाने में, एप्लीकेशन दे, हम कुछ करते हैं। तो इसके बाद बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलना। अच्छा सर, ये जो ट्रांसफार्मर चोरी किए गए हैं इसका पस मंज़र क्या, कोई टीम की शक्ल में लोग आ रहे हैं, क्या पस मंज़र है? पस मंज़र यही है कि एक पूरी टीम आती है और यहाँ से भी कोई लोग शामिल हैं। अब देखें ये जो 4 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं, पूरी रिपोर्ट मिली है उनको कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता। पहले यहाँ पे मेरी टरबाइन पे भी बंदा रात को होता था ध्यान के लिए, दूसरी टरबाइन पे भी होता था। जैसे ही ये कोई 1 हफ़्ता हुआ है तो उनको रिपोर्ट मिली है, यहाँ से भी लोग शामिल हैं। फिर ये पूरी टीम आई है और ये फसलों के दरमियान से उन्होंने अपने रास्ते बनाए, पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, उसके बाद उन्होंने ये सारी चोरी की है और बड़े आराम से चले गए। अच्छा सर, ये लोया पड़ा हुआ है, इसके अंदर का सारा सामान, उसमें क्या ख़ास राज होता है, कितना महंगा होता है, कितने लाख का नुकसान हुआ है? जी ये सारा इसके अंदर सामान तांबे का था, उनको जहाँ पे भी तांबा मिला है ना वो सारा निकाल लिया है। इसके अंदर जो ऑयल होता है वो भी लेकर चले गए हैं। और ये मेरी तार है तकरीबन 300 फुट, ये सिल्वर की थी, उन्होंने काटी है लेकिन नहीं लेकर गए। इसके अंदर जो तांबा था वो बता रहे हैं अभी इलेक्ट्रिशियन के ये 3 लाख का है, 2.5-3 लाख का वो नुकसान करके चले गए हैं। ये खाली डब्बा रह गया बस, जो ये बाकी चीज़ें पड़ी हैं ये भी सारी डैमेज कर गए हैं। ये सारा नया बनना है, सिर्फ डब्बा है इसके अंदर, बाकी सब। सर ये जो मामला हुए हैं, हमारी पुलिस भी जो है वो वारदात जब होती है उसके अगेंस्ट जो होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करती है, तो क्या आप समझते हैं बसीरपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 4 से 5 ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं? आपको बता रहा हूँ मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, मुझे पता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रांसफार्मर उतारा है, उनके जो है वो निशान भी लगे होंगे, ज़ाहिर बात है, ऑयल निकाला है, ये सारा खुला है, यहाँ पे फोरेंसिक टीम भी आ सकती है, फौरी उनको ट्रेस किया जा सकता है। ये जो इलाका है जहाँ से ये चोरी हुए हैं वहाँ पे अगर CDR डाटा लिया जाए तो रात को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर जो हैं वो एक्टिव थे। इस तरह की अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन ए वीक जो है ये ट्रेस हो सकते हैं, मुलजमान को पकड़ा जा सकता है। सर हमारे दूसरे किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसानों के लिए क्या मैसेज, अब क्या बताएं, एक इतनी महंगाई है और आप देख रहे हैं कि ये मैंने डेल्मो चला रखी है, अभी मेरी सारी जो मक्की है उसकी बिजाई रहती है, ये इतना महंगा तेल है। तो ये है कि अपना ध्यान करें, गवर्नमेंट ये जो पुलिस है उन पे आप यकीन ना करें, अपनी अपनी टरबाइन पे मुलाजम बिठाएं, कोई घर बिठाएं, फिर आप महफूज रह सकते हैं, वरना आपके लिए कोई यहाँ पे रहने की जगह नहीं है। अच्छा सर, पहले हमारे गांव में पहरादारी निज़ाम होता था लेकिन आजकल कोई उस तरह का ट्रेंड नहीं, उसके हवाले से क्या कहेंगे? पहरादारी निज़ाम होना चाहिए लेकिन उसमें अब ये है कि गांव वालों भी सपोर्ट नहीं करते, अपनी मदद आप भी कर सकते हैं, ऊपर से कोई सख्ती भी नहीं है कि पहरे जो हैं वो लगाएं, जैसे ये भी थाना की जुरिस्डिक्शन में आता है, बाकी जो अथॉरिटी हैं उनके वो भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो कोई इसका तहर्रक ही नहीं करता तो बस ये सारा निज़ाम ऐसे ही चल रहा है। हमें भी नहीं पता ना कि हमने अपने जो हकूक़ हैं वो किस तरह लेने हैं, असल मसला यही है। नाजरीन ये आप देख सकते हैं कि आबादी के दोस्त अहबाब बुज़ुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं कि बसीरपुर की हदूद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक ऐसे सरकारी वकील हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, लेकिन इनके साथ ही
चोर आए हैं और इनकी जो मोटर की जो है ट्रांसफार्मर है उसको उतार के लेके गए हैं। ये आप तमाम तर मनाजर देख सकते हैं, वीडियो साथ चल रही है कि ट्रांसफार्मर से उन्होंने सारा सामान निकाला है और बाकी जो कीमती सामान था तांबे की तार थी वो लेके फरार हो गए हैं। एक प्रोसिक्यूटर है, एक उसको ये मामलात पेश आ रहे हैं, तो जो आम जिम्मेदार है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेगा। तो इसलिए हमारी गुजारिश है DPO उकाड़ा से, बसीरपुर के SHO से कि वो खुदारा इस पे ना नोटिस लें और इसका ना फॉरेंसिक करवाएं ताकि वो जो चोर हैं वो जल्द अज जल्द अपने कैफरे किरदार को पहुँचें। बहुत शुक्रिया। खुदारा DPO उकाड़ा से हमारी गुजारिश है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये जो ज़िम्मेदार हैं पहले खाद की वजह से, महंगाई की वजह से इंतहाई परेशान हैं और इन पर रहम किया जाए।